very warm welcome to each one of you present here today. It is truly an honor and a pleasure to welcome you all to this vibrant celebration of Indian classical dance. This evening, we immerse ourselves in the rich cultural heritage of Odisha through dance, spellbinding beauty of Odissi dance, one of the oldest surviving classical dance forms of India. With its root in the ancient temple of Odisha, Odissi dance of devotion, grace, and storytelling. Its intricate gestures, mudras, and rhythmic footwork, soulful expressions transport us to a world where art meets spirituality. सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन हेतु मैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की माननीय रजिस्ट्रार जी डॉक्टर सृष्टि धाउन मैम, पद्मश्री विदुषी गीता महालिक जी, पंडित राम मोहन महाराज जी और डॉक्टर रुचि खरे मैम को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर एच.सी. पलेवाल जी, आप भी कृपया करके स्टेज पर आ जाएं। मैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार मैम सृष्टि धाउन जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कुछ शब्द कहने के लिए। Good evening everyone, and we are very delighted and excited and extremely grateful to Speak Mackay for providing us with this great opportunity. And as you know, the academic session has just begun and we have amongst us the new students, and that Speak Mackay is sponsoring. They have an MOU with Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya since last year, and we have been witnessing absolutely beautiful concerts because of you all. We are very grateful, and we have here amongst us Vidushi Geeta Mahalik ji. Very warm welcome to you, madam. And Shri Hari Narayan Das, Shri Prashant Mangraj, Shri Azhar Shakil ji. And please, you all must enjoy and also appreciate the dance form and all the music that accompanies us. As you know that Bhatkhande is having association with Speak Mackay, and as well as the government of Uttar Pradesh, we are already trying to hold concerts in many colleges. As many as 500 degree colleges will be sponsored, along with colleges that have music and dance in their curriculum. And so all these concerts will be held over the next 1 year. And it is a great platform for new students as well as the youth of Uttar Pradesh to witness classical music and dance in all its beauty. Congratulations once again, and thank you. Thank you so much, ma'am. Speak Mackay. Speak Mackay stands for the Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture among youth. It is a youth movement that began in 1977 with the aim of promoting India's rich cultural heritage among students and young people. Through classical music, dance, folk traditions, craft, yoga, and heritage walks, Speak Mackay connects today's generation with the timeless tradition of our country. It invites legendary artists to perform in schools, colleges, and universities, not for glamour, but for inspiration, discipline, and deep cultural understanding.
Spikmeke believes that exposure to the beauty, depth of Indian art can shape minds, souls, and create more aware, rooted, and balanced individuals. This evening, our talented performer Geeta Mahalik ji will take you on a divine journey through tales from mythology, nature, and everyday life, all expressed through the eloquent language of movement. Geeta Mahalik ji. Born in 1948 in Koraput in Orissa, Srimati Geeta Mahalik ji trained in Odissi dance under the late Deb Prasad Das and further her art under the guidance of Guru Mayadhar Raut. Srimati Geeta Mahalik is among the leading Odissi dancers of her generation and has performed extensively within the country and abroad. Her performances overseas have been presented at the Silk Road International Fair in China 2004, the Indo-Canadian Economic Symposium at Calgary, the Indian Night at Berlin, and the Indo-Greece Cultural Symposium at Greece. She has also choreographed several dance dramas including Lavanyati and Krishna Bhilasha. She is the founder director of Upasana as an institution for promotion of dance and music, where she trains young Odissi dancers. Srimati Mahalik has undertaken research and Odissi dance supported by a senior fellowship from the Ministry of Culture, Government of India. She has been associated in advisory capacities with the Odissi Sangeet Natak Academy, Bhubaneswar, and the Sahitya Kala Parishad, New Delhi. Srimati Geeta Mahalik has been honored with several awards including the Odri Pankaj Nritya Award and the Guru Dev Prasad Award of Barhampur, Orissa. Srimati Geeta Mahalik receives the Sangeet Natak Academy Award for her contribution to Odissi dance. So sit back and relax and let the rhythm of Mardala, the poetry of Abhinay and the elegance of Las captivate your senses. Let the performance begin. आप सभी से अनुरोध करती हूँ जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गीता महालिक जी का। संगत में रहेंगे गायन पर श्री हरिनारायण दास जी, मृदंग पर श्री प्रसाद मगरान जी, वॉयलिन पर श्री अजहर शकील जी। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज मेरे ये सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। भातखंडे म्यूजिक एकेडमी इज़ अ वेरी वेल नोन एकेडमी। इट्स India famous, even world famous also. Everyone knows Bhatkhande Music Academy, and you students are really lucky to have have training here, because here you can get excellent teacher who can train you in different style of dance and classical music and other things also. And मेरा ये सौभाग्य है कि मैं पहली बार आई हूँ आप लोगों के बीच में परफॉर्म करूँगी। ओडिसी आपके यहाँ है नहीं, भरतनाट्यम है, कथक है, बट आई विश ओडिसी भी होता तो आप लोग ओडिसी सीखने के लिए मौका भी मिल जाता आपको। बट यू मस्ट हैव सीन ओडिसी number of times in TV and at the stage also. Then I mean, it's a beautiful dance style. For me, it is all dance forms beautiful, but I love Odissi for its grace and lalitya, जिसको कहते हैं। तो I think all of you must be knowing the Spikmake's
they are doing a lot of work, social work all over country, even abroad also. तो उन्हीं के लिए जिनको जैसे भी अभी हमने वो स्कूल में करके आए, लखनऊ पब्लिक स्कूल, और वहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए ये कोई डांस परफॉर्मेंस हुआ. It is such a great thing that and I must thank the principal and the management also to have given the opportunity to witness the classical dance. So I was telling her कि आप हर टाइम मतलब थोड़ा सपोर्ट करिए स्पीक मैके को, so that your children will witness and they will be they would know something about our classical dance form, our classical music, whether it is instrumental music or folk, everything. हमारे all of us, we know our India is very rich in culturally. All over the world it is famous. Way back in '84 I had gone to many countries including Africa, and there not only the classical dance they really enjoyed, but what really amused me that मुझे रिक्वेस्ट आया कि आप राज कपूर नरगिस का जो गाना है उसी में डांस करिए. That means our even if our Hindi songs, हमारे जो Bollywood songs, that also is famous all over the world. I had the opportunity to visit Russia for the Festival of India in 2019-20. So there, of course, Russia is very culturally very rich. उनके जो ballet है, that is the super, absolutely. And I was just remembering their auditorium, that opera house जहाँ पर उनकी ballet होता है. What I mean, itself is a देखने का लायक है, tourist spot है. And you won't believe the packed house we could get, and half of the people, they were standing outside, not getting the seats, not getting the ticket. यहाँ पर तो हमारी ticketed show नहीं होता है, लेकिन बाहर तो even if it's a small program, it is ticketed always. और in Delhi, I don't know about लखनऊ थोड़ा सा बेटर होगा दिल्ली से शायद, बट दिल्ली में तो मे बी इट इज़ देर आर सो मैनी ऑडिटोरियम्स एंड सो मैनी आर्टिस्ट आर देर एवरी डे. एक में नहीं, 2-3 वेन्यू में एक ही साथ कुछ ना कुछ होता है. सो इट इज़ डिवाइडेड. आप मतलब एंड व्हेन द ऑडियंस आर नॉट देयर, तो आर्टिस्ट आप तो सब लोग को आप मस्ट बी एक्सपीरियंस कि आर्टिस्ट को अच्छा नहीं लगता है जब ऑडियंस नहीं होते हैं. ऑडियंस दे इंस्पायर द आर्टिस्ट. एनीवेज, सो आई मस्ट थैंक you people and your management also to have invited me today, and most of all I would like to thank Mr. Paliwal ji जो coordinator है हमारी Speak Make की. They are giving opportunity to all of us, all the students, all the children all over India to witness our classical dance, folk dance, instrument, everything. So let us come to the dance Odissi. आप सब लोग जानते होंगे, I should not repeat because you are all learning. So we have 8 forms of classical dance in India. So Odissi is one of them, and Odissi is the origin is in Odisha. So way back, maybe 2000 years old dance form hai, and the origin was from the Jagannath temple, Puri, Jagannath temple. तो it was a part of the daily ritual. वहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर में आप कभी गए होंगे या सुना होगा या देखा भी होगा आपने थ्रू इंटरनेट. सो वहाँ पर जो है एवरीडे लाख्स ऑफ पीपल दे दर्शन देर और प्रसाद भी लेते हैं. और उनके जो पूजा होती है, मतलब इट इज़ जो डेली रिचुअल्स है, इट इज़ रियली समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द टेम्पल्स. और वहाँ पर the young girls, we used to call them Mahari, it is like Devadasi. They used to sing and dance inside the temple during the puja. जैसे पूजा वहाँ पे 2-3 बार होती है, जैसे सुबह भी हुआ, फिर शाम को हुआ, फिर रात को हुआ. रात
में जब उनके सोने की समय आती है, जैसे हम लोग का सोने के समय तो भगवान के जो वैसे जगन्नाथ जी का भी इसी तरह है, उसी समय महारीज दे यूज टू सीट एंड सिंग द भजन एंड ज़्यादातर बैठ के भी वो डांस करते थे, अभिनय करते थे. सो it started from Maharis only. Then apart from Maharis, then one thing is Mahari, they were supposed to get married to Lord Jagannath. उनका बाकायदा शादी होती है, फंक्शन होता है, सेलिब्रेशन होता है, and they used to stay inside the premises of temple. I mean, उन लोग शादी कभी नहीं करते हैं. They don't have the family. I mean, they away from everything और भगवान के सेवा में लगे रहते हैं. Apart from Maharis, we have Gotipur, the boy, young boy, very young boy, around 8 years, 10 years old boy. They, dress like Radha and Krishna. So they dance inside the temple and sometimes outside the temple also during some festival like झूलना यात्रा होती है वहाँ पे, तो उसी समय वो जो गोटीपुआ है बाहर भी डांस करते हैं and टेम्पल के अंदर भी डांस करते हैं. बट द महारीज यूज टू ओनली परफॉर्म इनसाइड द टेम्पल ड्यूरिंग द डेली रिचुअल्स. बट धीरे धीरे ये प्रथा तो अभी तो लोप हो गया है, बट धीरे धीरे ये ओडिसी डांस जो बाहर ही आया, जैसे कि मैं आज आपके बीच में हूँ, बट आज वी ऑल नो द स्टेज इज़ लाइक ए टेम्पल टू अस एंड वहाँ पर जब हम शुरुआत करते हैं आइटम, जब हम डांस शुरुआत करते हैं, पहले हम मंगलाचरण करते हैं. इट इज़ ऑफर फ्लावर्स टू द डेटी, टच द मदर अर्थ, जहाँ पर हम डांस करेंगे क्योंकि धरती को हम माता मानते हैं, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं. इट्स कॉल्ड भूमि प्रणाम. देन इट इज़ त्रिखंडी प्रणाम. त्रिखंडी प्रणाम, प्रणाम टू गॉड, ईश्वर को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, और आप सब लोग को प्रणाम करके एक भगवान की स्तुति लेते हैं और स्तुति के ऊपर हम नृत्य करते हैं. ये सब पुष्पांजलि और त्रिखंडी प्रणाम के बाद ये स्तुति का साथ करके देन सभा नृत्य करके मंगलाचरण करते हैं. उसके बाद देन लाइक ऑल डांस फॉर्म वी हैव द डिफरेंट आइटम्स वन बाय वन. लाइक उसके बाद बट्टू भी होता है, पल्लवी भी है, प्योर डांस एंड द अभिनय, देन द मोक्ष. तो आज मैं शुरू करूँगी मंगलाचरण से, जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्लोक के ऊपर आधारित है मंगलाचरण. अब देखिए मंगलाचरण. भुजे सर्व वेणु शिरसि सिकी पूछम कटी तटे दुकुलम. मंगलाचरण. हेलो 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 हेलो. आ
तटे दुकूलम् नेत्रान्ते सहचर कटाक्षम् विदधते सदा श्रीमद् वृन्दावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे नयन पथगामी भव तुमे नयन पथगामी भव तुमे ये था मंगलाचरण like Puspanjali and all that thing, and I will not take much time of yours explaining the nuances of Odissi because I thought you people would be knowing all these things. But normally जब स्पीक पंके के लिए हम जाते हैं परफॉर्म करने के लिए because it is not the pure evening performance. ये लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, थोड़ा हम थोड़ा सा लेक्चर देते हैं रिलेटेड टू डांस, बट आई थिंक आई शुड अवॉइड दैट. आई विल कम टू द पॉइंट. लेकिन एक दो चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी. जैसे ओडिसी, यहाँ पर ओडिसी तो है ही नहीं, दैट्स व्हाट आई थॉट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि व्हाट इज़ द पोस्चर्स, मेन पोस्चर्स ऑफ ओडिसी. ओडिसी का जो मेन पोस्चर्स है, इट इज़ देयर आर मेनी पोस्चर्स, बट इम्पोर्टेंट पोस्चर जो है वो चौक एंड त्रिभंगी. यू मस्ट हैव सीन दिस चौक. दिस चौक वी हैव टेकन
from the sitting postures of Sri Lord Jagannath, Balabhadra, Subhadra. Because it was originated from the inside the temple, so we have taken these postures as a chalk, and then the Tribhangi. Tribhangi is three bends of the body. One bend is here, second bend is here, third bend is here. And the feet should be like this. Tribhangi, right side में भी होता है, left side में. If it is right side, the head is tilted to one side and eye is to there. So, इसी जो postures में, apart from that, we have got Darpani, Mardala, Manjira, and lot of postures are there. जैसे कोणार्क मंदिर का नाम सुना होगा, कोणार्क and Bhubaneswar, Puri, the Odisha is the place of temple, the land of temples. So you can find beautiful stone statues, stones in that postures, and we have taken those postures in our Odissi dance. And it is very graceful, and all the like हम कोशिश करते हैं जैसे प्योर डांस हो गया और भी जहाँ पे ज़रूरत होती है ये जो चौक और त्रिभंगी को हम मेंटेन करते हैं. So I will today now I will perform one Odia Abhinay for you, and I'm sure you understand, but उसका दो लाइन का मैं explain कर देती हूँ, maybe because they say the dance doesn't require any language. Especially Abhinay doesn't require any language, whether it is Tamil, Telugu, Hindi and Sanskrit. From your expression, from the Mukhabhinay and the expression of the face, the eyes, you can speak a volume. And I'm sure you would understand, because Odissi is from the land of Odisha, so normally we do Abhinay or such thing in Odia language also. There are many very famous poets in Odisha. So this is one of these things, and this is my favorite item. It is Sajani go Najani Pirati Jaha Koli. Radha tells her Sakhi, "Oh Sakhi, I don't know how I fell in love with Krishna. Krishna, who is dark and but he's so handsome, and I am a married woman. I have my family, and I have my husband. But when I hear the sweet melody of his flute, I cannot resist myself, but I just run and to meet him." सिर्फ राधा नहीं है, even the like all the animals, they also cannot resist the sweet sound of the flute, and they also run to meet Krishna. Because love between Radha and Krishna is not an ordinary love. वो तो आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन है, वही है जो है भक्ति प्रेम है. जो वो प्रेम है वो कुछ अलग सा है. तो यही अभी राधा कहती है अपना सखी से, सजनी गो नजानी पीरती जहा कली. हे सखी, I don't know how I fell in love with Krishna, and I have my family, but I leave everything and run to meet him. So this is the theory, and it describes the beauty of Krishna. So this is in Rag Kalasri. देखिए ओडिया अभिनय.
সজনী গো ন জানি পিরতি যাহা কলি সজনী গো ন জানি পিরতি যাহা কলি সজনী গো সজনী গো সজনী গো ন জানি পিরতি যাহা কলি গো ন জানি পিরতি যাহা কলি সে নব নাগর কাহ্নু সে নব নাগর কাহ্নু কি রঙে বজাতি বেনু সে নব নাগর কাহ্নু কি রঙে বজাতি বেনু সে নব নাগর কাহ্নু সে নব নাগর কাহ্নু কি রঙে বজাতি বেণু সে নব নাগর কাহ্নু সে নব নাগর কাহ্নু কি রঙে বজাতি বেণু শুনিলা বেড়ারু হুড়ি গলি শুনিলা বেড়ারু হুড়ি গলি সজনী গো সজনী গো সজনী গো ন জানি পিরতি যাহা কলি গো ন জানি পিরতি যাহা কলি কি কলি মো মূঢ় মতি হইয়ে কুলবতী কি কলি মো মূঢ় মতি হইয়ে কুলবতী
ଶିଳ ରଖି ନ ପାରିଲି ସଜନି ଗୋ ସଜନି ଗୋ ସଜନି ଗୋ ନ ଜାଣି ପିରତି ଯାହା କଲି ଗୋ ନ ଜାଣି ପିରତି ଯାହା କଲି ସଜନି ଗୋ ନ ଜାଣି ପିରତି ଯାହା କଲି That was Sajani Go Na Jani Pirati Jaha Kali. I hope you could understand the Abhinay. Now I will perform Krishna Leela based on Surdas कविता के ऊपर बेस्ड है. इसी में मैं ज़्यादातर किशन जी का जो बचपन की जो है वो मैं दर्शाऊंगी. जैसे किशन जी छोटे थे तब अपना बलराम और अपने दोस्तों के साथ वो गाय चराने के लिए जाते थे और वहाँ पर बलराम और उनके जो दोस्त हैं उनको बहुत चिढ़ाते थे. बलराम कहते हैं कि किशन देख तू कितना काला है, तेरा शरीर कितना काला है और मुझे देख मैं कितना गोरा हूँ और माँ जसोदा और नंद राजा वो कितने गोरे हैं, शायद तेरे को कहीं से मोल के ले आए, कहीं से खरीद के ले आए. ये सुन के किशन जी को बहुत दुख पहुँचता है. वो रोते हुए जाके माँ जसोदा के पास पहुँचते हैं. माँ जसोदा उनका जो सबसे प्रिय चीज़ है मक्खन उनको देती है खाने के लिए, वो नहीं खाते हैं. वो कहते हैं तुम पहले मुझे बताओ वास्तव से मैं तुम्हारे पुत्र हूँ या नहीं. तो माँ जसोदा उनको बहुत प्यार से समझाते और गौ माता के सौगंध लेके कहते हैं तू मेरा पुत्र और मैं तेरे माँ. ये सुन के किशन जी बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ फिर अपने दोस्तों के साथ बॉल खेलने के लिए चले जाते हैं जमुना के तट पर. बॉल खेलते खेलते बॉल गिर जाता है पानी में. आप सब जानते हैं पानी में फिर सबको वो बोलते कि जाके पानी में से बॉल लेकर आओ, लेकिन कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ कालिया रहता है. तो आखिरी में वो खुद कमर पट्टी कसकर वो पानी में कूद पड़ते हैं और बॉल ढूंढते ढूंढते कालिया के साथ उनका मुलाकात हुई. कालिया जब एक नज़र उनके ऊपर देता है वो सोचता कि ये तो छोटा सा बालक है, उसको तो अभी हम एकदम से परास्त कर देंगे, दमन कर देंगे. लेकिन उसको नहीं पता था कि ये छोटा सा जो बालक है वो उसका पास आध्यात्मिक ताकत है. तो कालिया के साथ काफ़ी लड़ाई हुई. आखिरी में कालिया को दमन करके उसकी फन के ऊपर पैर रख के उन्होंने खड़े हो गए. ये है मेरी जो कृष्ण लीला के एक भाग है जिसको मैं आपके पास दर्शाऊंगी. और आप सभी जानते हैं कि अभिनय हमारा कैसे होता है. हस्त मुद्राएँ, एक हाथ की हस्त मुद्राएँ, असंयुक्त हस्त मुद्रा, संयुक्त हस्त मुद्रा और मुखाभिनय के द्वारा हम अभिनय दर्शाते हैं. कथक में भी वही है, भरतनाट्यम में वही है. सब हर जो हमारे डांस स्टाइल है, जो क्लासिकल डांस स्टाइल है उसी में वो है. सिर्फ फ़र्क है कि ओडिसी में जो हमारा भंगिमा है वो
अलग है भरतनाट्यम से और कथक से और मणिपुरी से, सबका अलग अलग पोस्चर्स है, अलग अलग वो है, लेकिन जो नाट्य शास्त्र हम सारा फॉलो करते हैं तो हस्त मुद्राएँ एक्सेप्टिंग फ्यू ट्रेडिशनल हस्त मुद्रा सबका एक ही जैसे होता है। ये सूरदास की कविता के ऊपर आधारित है। और आप देखिए कृष्ण लीला। बैलेंस करना। बैलेंस करना, ठीक है।
मैया मोहे दाऊ बहुत खिंचायो दाऊ बहुत खिंचायो मैया मोहे दाऊ बहुत खिंचायो दाऊ बहुत खिंचायो मोस कहत मोले कोलीन हो मोस कहत मोले कोलीन हो तू जो समति कब जाया तू जो समति कब जाया मैया मोहे दाऊ बहुत खिंचाया दाऊ बहुत खिंचाया काह करो यही ऋषि के मारे काह करो यही ऋषि के मारे खेल नहीं जात पुनि पुनि कहत कौन है मात पुनि पुनि कहत कौन है मात कोहे तेरे तात मैया मोहे दाऊ बहुत खिंचाया दाऊ बहुत खिंचाया गोरी नंद यशोदा गोरी गोरी नंद यशोदा गोरी तू कत श्यामल गात चुटकी दे दे ग्वाल नचावत चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सबे मुस्कात मैया मोहे दाऊ बहुत खिंचाया दाऊ बहुत खिंचाया सुनहु कान बलभद्र चबाए सुनहु कान बलभद्र चबाए जनमत ही के दूत जनमत ही के दूत सूरु श्याम मोहे गोधन की सो सूरु श्याम मोहे गोधन की सो हूँ जननी तू पूत हूँ जननी तू पूत हूँ जननी तू पूत हूँ जननी तू पूत हूँ जननी जननी
जननी जननी तू पुत 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 जननी तू Hey, Grinda, Kadata, Gadigina, Day, Trakadena, 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 श्रवणन सुनी रही यह वाणी ब्रजवे अवतार बार बार कही शरण पुकारे रख रख गोपाल रख रख गोपाल रख रख गोपाल रख रख गोपाल जो हमने अभी देखा वो सिर्फ एक नृत्य नहीं था, वो तो मानो चलते फिरते एक कविता का रूप था। प्रसिद्ध नृत्यांगना गीता महालिक जी द्वारा प्रस्तुत ओडिसी नृत्य वास्तव में एक अद्भुत संगम था गौरव, भक्ति और परंपरा का। हर एक कोमल अंग संचालन, हर एक भावपूर्ण दृष्टि और तालबद्ध पदचिन्ह ने हमें ओडिशा की आध्यात्मिक भूमि की सैर कराई। जटिल मुद्राएं, लहराते हुए कटिचालन और हृदय को छू लेने वाला अभिनय, इन सब ने वो कहानियाँ बयां की जो सिर्फ शब्दों से कह पाना संभव नहीं था।
ऐसी उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए वर्षों की साधना और समर्पण चाहिए होता है। और आज गीता महालिक जी ने हम सबको यह सिद्ध कर दिया कि ओडिसी केवल एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि आत्मा को छू जाने वाली एक दिव्य कला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। इसके साथ मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबको मेरे डांस अच्छा लगा। और जैसे उड़िया अभिनय मैंने कहा, हिंदी तो सब समझ जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि डांस डजंट रिक्वायर एनी लैंग्वेज। जैसे हम उसके जो अर्थ है उसको हम पहले समझते हैं, उसके पीछे की भाव को हम खुद महसूस करते हैं। महसूस करने के बाद जो मुखाभिनय होता है, दैट इज़ कॉल्ड सात्विक अभिनय। और मैं आज आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी समय दिया एंड आई एम सॉरी आई वाज लेट, बट इट वाज नॉट माय फॉल्ट। एनीवे, जो भी है इट एंड्स वेल। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मैं छात्र छात्राओं से निवेदन करती हूँ कि यदि आज की प्रस्तुति से संबंधित किसी के कोई भी प्रश्न हैं तो वो मंच पर आकर मुझे दे सकते हैं, या वहाँ से बैठे बैठे भी अपनी जगह से पूछ सकते हैं। उन सब के उत्तर स्वयं गीता महालिक मैम हमें देंगी। हमारे बीच इतनी बड़ी कलाकार हैं, कृपया आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं जानती हूँ आप सब लोग अपने अपने फील्ड में विद्वान हैं एंड मस्ट बी ए वेरी गुड डांसर्स एंड आर्टिस्ट, बट जैसे मैं भरतनाट्यम देखती हूँ या कथक देखती हूँ तो मुझे भी बहुत माइंड में मेरा क्वेश्चन होता है कि ये कैसे है, क्यों, ताकि मैं उसको फिर मेरा अपना उड़ीसी में मैं ले सकूं। तो आपको किसी में भी डांस रिलेटेड कुछ पूछना है, नॉट द स्टूडेंट्स, एनीबडी एल्स ऑल्सो यू कैन। आई थिंक दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, डजंट रिक्वायर एनी। अच्छा है। हेलो, प्रणाम मैम। हाँ बताइए। मैं श्रेयांशी भातखंडे की स्टूडेंट हूँ कथक में। हाँ जी। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये हमारा ऑनर था आपको ऐसे देख पाना लाइव। मैम, मेरे क्वेश्चन है कि मैम एक्सप्रेशंस और मुद्राओं पे कैसे ध्यान दिया जा सके, जिससे आपके इतने ग्रेसफुल मूव्स थे, हम कैसे ऑडियंस को अपनी तरह अट्रैक्ट करें एक्सप्रेशंस और मुद्राओं के थ्रू? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम जब अभिनय करते हैं, हमको मुद्राएं का हम करते हैं, व्यवहार करते हैं। एक हाथ का मुद्रा, दोनों हाथ का मुद्रा, वो तो पूरा साइंटिफिक है एंड टेक्निकली एवरीवन नोज कि कितना। सिर्फ असंयुक्त और संयुक्त हस्त मुद्रा के अलावा भी पारंपरिक मुद्राएं हैं, उड़ीसी में भी है, कथक में भी है, भरतनाट्यम में भी है। तो लेकिन जो अभिनय जो है वो, जैसे मैंने कहा, वो ठीक है, आप फॉलो कर सकते कि इसको देख के आप ये सोच सकते कि हाँ, ऐसे जब मैं करूँ इस जगह में ऐसे मुखाभिनय करूँ तो अच्छा लगेगा। बट व्हाट आई थिंक इट कम्स फ्रॉम विद इन। इफ़ यू डोंट यू नो लाइक मन में जो होता है, जो भक्ति भाव है, हम जब भी बच्चों को सिखाते हैं भक्ति भाव, अच्छा जब मंदिर में जाते हो तो कैसे होता है, ऐसे करके आंखें बंद करके नमस्ते कर दिया, प्रणाम कर दिया, भक्ति भाव। वो भक्ति भाव नहीं है। भक्ति भाव को आपके मन में लाना चाहिए कि हाँ, मंदिर में जाते भक्ति के साथ ये जो भाव है, दैट इज कॉल्ड सात्विक भाव। जो भी चीज़ है, जैसे माँ जसोदा के जो कृष्ण जी को, इट्स ए सच ए सिंपल थिंग, हर माँ अपने बच्चों के लिए वो करते हैं। लेकिन उसी समय जब आप सोचते हो कि हाँ, तुम ही यशोदा हो, तुम ही उनको प्यार से उनको खिलाती हो, तो उसी समय वो अपने आप, यू हैव टू फील इट इनसाइड वो, बिकॉज डांस इज नॉट ओनली द हैंड मूवमेंट्स एंड बॉडी मूवमेंट्स, इट इंक्लूड्स द सोल ऑल्सो. Soul is the main thing, and that is main thing in अभिनय, not in the pure dance. Pure dance तो आप कर सकते हो हाथ के मुद्रा और फुटवर्क का साथ, but that soul जिसमें आप नहीं दोगे वो तो सात्विक नहीं होगा.
Thank you so much, ma'am. थैंक यू. नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर रुचि खरे, विभागाध्यक्ष नृत्य, और मैं कथक नृत्य विधा से हूँ. आपके नाम सुना है मैंने बहुत. आप बताइए. धन्यवाद मैम. बताइए. आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय आपने दिया, और आपके जो सहयोगी कलाकार थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने इतना अच्छा संगत आपने मुख्य कलाकार को आपने दिया. हम आपके बहुत आभारी हैं. मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं इस समय दूर दूर से देश से आए हैं, अलग अलग राज्यों से, इनको आप ये बताएं कि आपका रूटीन कैसा रहता है ताकि ये आपसे इंस्पायर होके थोड़ा सा अपने आप को भी व्यवस्थित कर सकें. रियाज कैसे करें? रियाज तो आप कथक में भी तो बहुत अच्छा से करते हैं आप लोग जी. मतलब लेकिन एक होता है, मैं ये सोचती हूँ कि जो आर्ट जो है, डांस या म्यूज़िक, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, वोकल हो या एनी काइंड ऑफ डांस हो, ये किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते हैं. माँ बाप हमको डाल देते हैं. मेरे पास भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो पेरेंट्स बोलते नहीं ये सीखो वो सीखो, आते सीखने के लिए. ठीक है, इट इज़ बेटर टू इंट्रोड्यूस देम फ्रॉम द चाइल्डहुड. लेकिन जब बड़े होते हैं, वो अपना जैसे टीनेजर हो जाते हैं, वो अपना अपना मर्जी हो जाता, नहीं हमें ये इसमें बोर हो गए. पढ़ाई के लिए बोर नहीं हो पाएंगे क्योंकि पढ़ाई तो कंपलसरी है. कोई भी पेरेंट्स उनको उसमें से ठीक है पढ़ाई नहीं करना तो चलो, नहीं ये तो नहीं, पढ़ाई तो करना है. बट ये जो है इट रिक्वायर्स पैशन. पैशन होना चाहिए इसके लिए. जब आपका पास इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है, देन यू कैन नेवर लर्न इट. और ये जो पैशन जो चीज़ है, जैसे हम लोग का, मैं उड़ीसा की हूँ, आई एम एन उड़िया. उड़ीसा की माँ बाप सारे उड़ीसा में हैं. माय हस्बैंड आल्सो बिलोंग्स टू उड़ीसा, बट वी हैव सेटल्ड डाउन इन दिल्ली. वो अलग बात है. उसमें क्या होता है, सपोर्ट तो मिलता है, बट एज ए मैरिड वुमेन एंड एज ए मदर एंड एज ए वाइफ वी हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अपना हस्बैंड्स के लिए भी है एंड बच्चों के लिए है. उसके साथ उसके बावजूद जब हम पैशन होता है, रियल इंटरेस्ट होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. आई रिमेंबर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था अशोका होटल में, और मैं परफॉर्म करके आई हूँ. एंड देयर one ambassador had come from abroad and he was a very close friend of ours. तो मेरे हस्बैंड उनको बुला के ले आए, आ जाओ डिनर करो. मेड तो सरा चली गई है, मेड इधर ही है जो कि डांस कर रही थी. तो आके घर पर विदाउट चेंजिंग माई कॉस्ट्यूम, विदाउट चेंजिंग माई मेकअप, आई कुक्ड एंड विथ प्लेजर खिलाया उनको. अच्छा, यही चीज़ होता है ना, बच्चों की पढ़ाई होता है, ये होती है, सब कुछ के साथ साथ हम जब उसको कंटिन्यू करते हैं तो कैसे करते हैं? वो तो सिर्फ पैशन ही चाहिए, और उसके अलावा भी कोई बहाना नहीं होना चाहिए. आप लोग का तो क्लासेस भी होता है, बट घर पर जैसे आपको रियाज तो करना ज़रूरी होता है. उसी में फिर आपका तो सारा कुछ अंग चालाना हो गया, ये हो गया, सारा कुछ तो उसी में प्रैक्टिस करने में जो है, उसी में कोई बहाना नहीं. आज मन नहीं कर रहा है, आज बारिश हो रहा है, कल करेंगे. आज सिर दर्द कर रहा है, वो कल करेंगे. वो कल 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 कभी नहीं आएगा. That moment, fix a moment, fix a time, and you should practice, and you must be doing it all, because आप आए हैं यहाँ भातखंड में करने के लिए, आपका इंटरेस्ट भी होगा, पैशन भी होगा. But this is what I said, 2 things required, 3 things. एक dedication, passion and practice. Then no one can stop you becoming a star in your own field. Thank you. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर रुचि खरे मैम को. कृपया वो मंच पर आकर गीता महालिक जी मैम को सम्मानित करें पुष्प और अंगवस्त्र देकर. एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए रुचि खरे मैम के लिए.
मैं अनुरोध करूंगी पंडित राम मोहन महाराज जी वो भी कृपया मंच पर आएं। विभोर रखा और जैसा कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का नृत्य तो अद्भुत है ही है, उसके साथ जो उसका म्यूजिक है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो उसके ऑर्केस्ट्रा है, अकम्पनीमेंट चलता है, वो भी उतना ही अद्भुत है। 3 लोग केवल अकम्पनीमेंट कर रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था। इट वाज सच अ सोलफुल म्यूजिक दैट वाज बीइंग क्रिएटेड हियर। सो आई थैंक फ्रॉम द bottom of my heart all the guest artists who visited Bhatkhande and they gave their mesmerizing performance. I also thank Dr. Paliwal for bringing such great artists in our university. I thank all the team members, the Bhatkhande staff, the media and the students and the faculty for cooperating and making this program success. Thank you so much.